So this is a set of next 10 questions. Please have a look at them and try to do it alongside me. For inferior goods, the substitution effect of price decrease and the income effect of the same price decrease is what? So I hope you know this. For normal goods, income effect and price effect, they work in the same direction, right? But for inferior goods, they work in the opposite direction. That is a different matter. For inferior goods, substitution effect is overpowering income effect, and given goods, in your income effect is overpowering substitution effect, right? But we have been just asked this कि तुम्हारे को ये बताना है कि substitution effect and income effect of the same price decrease, they're working in the opposite direction, right? So they work in opposite direction. That's a correct answer. The shutdown point of a profit maximizing competitive firm in the short run is when the market price is equal to what? देखिए, when the price uh, is not able to cover the minimum of average variable cost, then the firm is going to shut down. ठीक है? अगर मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया प्राइस, तो फर्म शट डाउन कर जाएगी. सो द आंसर इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट? सो दिस इज services such as the provision of clean air and national security, these are pure public goods. Pure public goods का क्या होता है characteristic? These are non-rival. अब क्लीन एयर है, नेशनल सिक्योरिटी है. आप किसी से कह सकते हो कि नहीं तुम ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी ले रहे हो और मैं कम ले रहा हूँ, राइट? सो वन दे आर नॉन राइवल एंड दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल ऑल्सो. सो गवर्नमेंट क्या ये कह सकती है किसी को कि नहीं हम आपको नेशनल सिक्योरिटी देंगे और आपको नहीं देंगे? इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो प्योर पब्लिक गुड्स. Debts which have to be repaid at some specific future date, I think these are redeemable debts, right? They must be repaid at a predetermined date. These are redeemable debts. The markup is a fraction of price of the profit maximizing quantity Q star of a for a monopolist can be expressed in the following form. Here E star represent the price elasticity of demand. हमने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी बनाया है, आप देख भी सकते हो. इट इज कमिंग फ्रॉम लर्नर्स इंडेक्स, राइट? सो लर्नर्स इंडेक्स ये कहता है कि मान लीजिए किसी गुड की इलास्टिसिटी कम है, तो जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास ये ज्यादा क्षमता है कि वो हायर प्राइस चार्ज कर सकता है. हायर किसके रिलेटिव में? हायर इन रिलेशन टू द कॉस्ट. जब किसी चीज की इनइलास्टिक डिमांड होती है, तो मोनोपोलिस्ट के पास ज्यादा क्षमता होती है कि वो अपने प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के संदर्भ में ज्यादा सेट कर पाए. He can charge price much higher than the marginal cost. लेकिन अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, वो कब होगा? जब सब्सिट्यूट ज्यादा होंगे, जब डिमांड अर्जेंट नहीं होगी. तो मोनोपोलिस्ट के पास ये क्षमता नहीं है कि वो प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के काफी ऊपर रख पाए. तो ये रिलेशनशिप आप देख रहे हो नेगेटिव है. अगर इनइलास्टिक डिमांड है, मोर इनइलास्टिक इज द डिमांड, हायर इज द ability of the monopolist to set the price above the marginal cost, right? So markup is higher for goods with a higher price elasticity of demand. Markup is higher for the goods with a lower price elasticity of demand, right? And markup is lower for the good with a higher price elasticity of demand. ये relationship negative है, तो इसका आंसर होना चाहिए 2. If consumer definitely prefers the payment of rupees 50 for sure to a lottery which promises a reward of 100 or 0 with probability 2 each, बेटा अगर ये लॉटरी खेलते हो तो इस लॉटरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? विद प्रोबेबिलिटी हाफ 100 मिल सकता है, ठीक है? एंड विद प्रोबेबिलिटी हाफ 0 मिल सकता है. तो इस लॉटरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 50. और कंज्यूमर से कहा गया या तो ये लॉटरी खेल लो या फिर 50 रुपीज ऐसे ही ले जाओ.
तो कंज्यूमर कहता है मुझे ऐसे 50 रुपीज ऐसी दे दो सर्टेनिटी से। इट डजंट वर्क, मतलब वो कहता है मैं लॉटरी नहीं खेल रहा। हम कहेंगे अरे लॉटरी में तो देयर इज अ चांस कि तुम 100 रुपए भी तो जीत सकते हो। तो कहेगा 100 रुपए जीतने का चांस तो है, लेकिन 100 रुपए जीरो भी तो आने का चांस है। तो इससे अच्छा ये क्यों नहीं है कि मैं 50 ले लूं। दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी सेम है, आई विल गो विथ सर्टेनिटी। रिस्क एवर्स इंडिविजुअल को सर्टेनिटी ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू अनसर्टेन आइटम। लॉटरी खेलना एक तरीके की अनसर्टेन आइटम है, राइट? सो द पर्सन इज रिस्क एवर्स हियर। देन Mr. Tukai is very particular very particular in how he makes his coffee. He is completely inflexible in that he can only take 1 teaspoons of coffee with 2 teaspoons of sugar. तो भैया 1 teaspoons of कॉफी है एंड 2 teaspoons ऑफ शुगर है, ठीक है? तो इस तरीके का जब ये है प्रेफरेंस है, तो हम इसका जब यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं हम लिखते हैं ऐसे, min ऑफ t/1 कॉमा s/2। अब तुम बताओ मुझे, any more coffee or sugar to him is discarded in his quest for a perfect coffee. Suppose you give him 9 teaspoons of coffee and 2 teaspoons of sugar. 9 teaspoons of coffee, 9 teaspoons of coffee and 2 teaspoons of sugar. तो क्या आएगा बेटा ये? min of 9, 1। तो अब आपसे पूछे कि इस केस में आपको यूटिलिटी कितनी मिलेगी भैया? 1। how many cups of coffee can create from this one? So only 1 cup of coffee। भाई 2 teaspoons ऑफ शुगर के साथ वो एक ही कप ऑफ कॉफी बना सकता है ना। उसको 9 teaspoons ऑफ कॉफी तो मिले हुए हैं, बट वो जो एक्स्ट्रा 8 है ना, वो कोई फायदा नहीं है उनका, राइट? दे आर डिस्कार्डेड। In 2/2 general equilibrium model of exchange with goods X and Y and two consumers 1 and 2, both whom have weakly positive endowment in the exchange equilibrium, we know that। देखिए वो आपसे ये कह रहा है कि इन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम, देखिए एक्सचेंज इक्विलिब्रियम में मतलब ये है कि जो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है वो भी परेटो एफिशिएंट तो होना ही चाहिए। और परेटो एफिशिएंसी के लिए हमारे को क्या चाहिए कि एमआरएस दोनों का इक्वल हो जाए। सो एमआरएस ऑफ कंज्यूमर 1 इज इक्वल टू एमआरएस फॉर कंज्यूमर 2, राइट? A utility maximizing consumer has a utility function this and has a budget constraint this guy. So you know this. अब इसका MRS for is what? To modulus of MRS I'm saying. And यहाँ पे modulus of P1 by P2 is what? Budget line का P1 by P2 is this. So जब भी P1 by P2 is less than MRS, right? Consumer is going to consume all X and nothing of Y। यहाँ पे इनकम कितनी है? 10। प्राइस ऑफ एक्स कितना बेटा? ये ऐसे लिखोगे ना, 1 into x प्लस 2 into y इक्वल्स टू इनकम, ऐसे लिखते हो ना? तो प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 1। सो दिस इज 10 एंड वाई स्टार इज 0। सो एक्स स्टार 10, वाई स्टार 0। एक्स स्टार 10, वाई स्टार 0। हाँ। सो स्टैगफ्लेशन डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हाट, प्राइसेस राइज कर रहे हैं और आउटपुट या तो सेम है या फॉल कर रहा है। दैट इज व्हाट स्टैगफ्लेशन इज, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू।